الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ چلیے سب سے پہلے پچھلے اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں۔ اے بی سی ڈی کیا ہوگا؟ ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے بی۔ ترجمہ کیجیے الحمدو، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل کنٹرول۔ بی اور سی، بی اور سی، تمام شکر اور تمام تعریفیں۔ ترجمہ کیجیے الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ اے بی سی ڈی، دھتکارا ہوا، دھتکارا ہوا، سی، دھتکارا ہوا۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ اے بی سی ڈی کیا ہوگا؟ اے اور وہ اللہ ہے، ہاں اے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ۔ چلیے آج کے سبق کی طرف۔ سمجھنا آسان۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن، کیا دلوں پر ان کے تالے۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی 4 اور 5 آیت جو ہے پڑھیں گے اور اس کے اسباق لیں گے۔ گرامر میں ہم دیکھیں گے ضمائر متصلہ، یعنی جڑ کے آنے والے ضمائر، جیسے ہو، ہم، کا، ہم، ہی، نا۔ نکات تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3000 سے زائد بار آئے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 3 کے ختم تک آپ 33 الفاظ سیکھیں گے۔ یہ 33 نہیں ہوں گے بلکہ قرآن میں تکرار کے ساتھ جو بار بار آئے ہیں وہ ہوں گے 12,000 سے زائد، یعنی آپ 12,000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ تو چلیے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم می دن کا، دن بدلے کے، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالک، مالک کا مطلب مالک ہی ہے، مالک اس کا مادہ میم، لام اور کاف ہے۔ یوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یومی دن کا، جیسے ہم اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں یوم عید، یوم آخرت وغیرہ۔ یوم اس کی جمع کیا ہوگی؟ ایام، یوم ایام۔ الدین بدلے کے، اس کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 بدلہ اور دوسرا زندگی کا نظام یعنی دین اسلام۔ چلیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ دین کے 2 معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام۔
جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک یعنی آنر ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں سب کو دیکھ کر بھاگے گا. بس اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی. یہاں تو یہ ہے نا کہ ماں ہے، بچے کو کچھ ہو جائے تو کس طرح وہ تڑپ جاتی ہے، اسی طرح جو ہے نا بہن بھائیوں کو تو ایک دوسرے کے لیے ہم مطلب جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، کسی کو کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو نفس نفسی ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے اور ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے. اور ساتھ میں ہمیں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں سزا نہ دے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور اس کو قبول کرے گا. تو نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. تو گہرے تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کے. مالکی یوم الدین. تو آپ بھی اپنی جگہ اس کو دہرائیے. مالک یوم الدین. چلیے ترجمہ کیجئے. یوم دنوں، دن، فیصلہ، مالک. ABCD کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یوم بی دن. بی دن. گڈ. دین کے 2 معنی ہیں، بدلہ اور قیامت. بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، بدلہ اور جواب دہی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور قیامت. کیا جواب ہوگا؟ ABCD. 2 معنی بتانے ہیں، 2 معنی آپ نے بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام. مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت ہے وقت پر نماز پڑھنا، برے کام سے بچنا، ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی مدد مانگنا. ABCD کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین کی روشنی میں. سی، ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا. گڈ. ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا. چلیے اب دوسری آیت کی ہم تلاوت کرتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نون آ گیا نا تو یہ وہ نحنو والا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوگا، نا کا مطلب یہاں پہ ہوگا ہم. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک، وا کا معنی ہوتا اور ایاک تجھ ہی سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں بھی جو نون ہے وہ ہم کو ظاہر کر رہا ہے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ دیکھیں، ایاک تیری ہی، ایا ہی کا تیری، تیری ہی. جملے کے شروع میں کا آئے، ایا اس کا تکیہ ہے کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عبادت، عابد، معبود، یہ بھی اسی کے مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا،
दूसरों की खिदमत करना, मगर सबसे पहले क्या है? नमाज। सबसे पहले क्या है? नमाज है इबादत में। इसी का सबसे पहले हमसे सवाल होना है। जिसने नमाज छोड़ी इसने दीन को ढा दिया। लेकिन शर्त क्या है? कि सही नियत के साथ हो। ये जो सारे काम हम करते हैं ये सभी इबादत हैं। जितने भी काम हैं अगर हम उनको अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पे करते हैं वो सब इबादत में शुमार होते हैं, लेकिन हमारी नियत सही होनी चाहिए। वा इया का वा और इया का तुझ ही से। वा और इया का तुझ ही से। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। व इया का नस्ताइन और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अक्सर अल्फाज के शुरू में वा और फा लगाते हैं। तो नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इससे मिलते जुलते अल्फाज हम जो है उर्दू में भी बोलते हैं, जैसे इस्तानत, आयानत, औन, तामन, मामन, ये भी इसी से निकले हुए अल्फाज हैं। नस्ताइन मदद, हम मदद चाहते हैं। ना का पहले भी मैंने बताया था पढ़ते हुए, नाबदू में जो ना है वो हम को जाहिर कर रहे हैं। ना हम, नस्ताइन में जो ना है वो भी हम, तो दोनों का यहाँ मतलब क्या है? हम। नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। इसके अस्बाक लेते हैं, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, तेरी हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम इसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत से क्या मुराद है? यानी अल्लाह के हुक्म पर चलना और इसकी नाफरमानी से बचना है। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना वगैरह, ये सब काम जो है इबादत हैं, अगर हम इनको अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक करेंगे। इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा वो गोया काफिर बन जाता है और दीन को गिरा देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम इतने कमजोर हैं, अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि ऐ अल्लाह, इस नमाज को और इसके बाद हर काम को करने में मेरी मदद, हर काम को करने में तेरी मदद चाहिए। हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए। तेरी इबादत के लिए भी तेरी ही मदद चाहिए। ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। तो इस इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, इस आयत को जो है रखते हुए सामने तो हमें ये दुआ मांगनी चाहिए। वो आदत नंबर 8 है, हर काम में नियत हो इबादत की। दरअसल इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह। जिस्म को तो खाने की जरूरत होती है, लेकिन रूह को इबादत की। रूह की गिजा क्या है? इबादत है। वो लोग कहते हैं ना रूह वो मूसीकी रूह की गिजा है, तो ये गलत है। तो हमारा क्या वो है, जिस्म को खाना चाहिए तो रूह को क्या? इबादत। रूह को इबादत की जरूरत है। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करता इसको सुकून नहीं मिल सकता, यानी इसको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। आदत नंबर 9 है, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। हर काम में अल्लाह की मदद मांगना किस तरह? जैसा कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों ने मांगा, यानी हमें भी उसी तरह मांगना चाहिए जैसे
तमाम नबियों ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं उन्होंने मांगा। यानी दुआएं सीखना नमाज की इस कोर्स के बाद दूसरे और तीसरे कोर्स में जो दुआएं सिखाई गई हैं उनके मुताबिक। तो हम इसकी भी तिलावत करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नअबुदु इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आप भी अपनी जगह इसको दोहराइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो चलिए ये जो हमने कल आयतें पढ़ी थी इनको एक नजर फिर देखते हैं। पहली आदत थी औज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में आना। आदत नंबर 2 थी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। और आदत नंबर 3 थी अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। आदत नंबर 4 खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। आदत नंबर 5 अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए इसका बार बार शुक्र करना। आदत नंबर 6 में हमने पढ़ा था दूसरों पर रहम कीजिए, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखिए। तो आज हमने पढ़नी है आदत नंबर 7, 8 और 9। आदत नंबर 7 क्या है कि कोशिश हो कि हर काम आखिरत को सामने रखकर किया जाए। आदत नंबर 8 हर काम में नियत हो इसकी इबादत की। आदत नंबर 9 हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। तो ये कौन दोहराएगा? ये कल वाली 6 आते एक दफा दोबारा दोहरा दीजिए। मैं दोहराऊं? हाँ जी बिल्कुल दोहराइए। आदत नंबर 1 अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2 हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3 अल्लाह के बारे में हमेशा मस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4 हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5 इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये आदत नंबर 7 आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। आदत नंबर 8 हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9 हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। तो इसको कौन दोहराएगा? कोई और सिस्टर या ब्रदर? आदत नंबर 7 आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। आदत नंबर 8 हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9 हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। शुक्रिया। चलिए अभी कुछ सवाल लेते हैं। तर्जमा कीजिए। नाबुदू एक से ज़ैद जवाब का इंतखाब करना है। हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, तेरी ही हम इबादत करेंगे। हम इबादत करते हैं। दो जवाब होंगे इसके। नाबुदू ए और डी। हम इबादत करते हैं और हम इबादत करेंगे। ये आपको आगे चल के हम जब माजी से निकलेंगे ना मुदारे में जाएंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि इसके 2 जवाब होते हैं, करते हैं भी और करेंगे भी। दोनों जमाने पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो तर्जुमा कीजिए। इय्याका हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, तेरी ही वो ही। ABCD क्या होगा? इय्याका तेरी ही, तेरी का आ गया ना, तेरी ही। तर्जुमा कीजिए। नस्ताइन हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगेंगे, वो ही। नस्ताइन बी और सी हम मदद चाहते हैं और सी हम मदद मांगेंगे। नहीं, इसमें नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। ठीक है, नून जो है वो हम के लिए आया है, अस्ताइन मदद चाहते हैं। इबादत के क्या मानी हैं? एक से ज़ायद जवाब का इंतखाब करें। इबादत, सदका, अतात, इनमें से कोई नहीं। और इतात।
इय्याका नअबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, हर चीज में अल्लाह की मदद चाहना, हलाल कमाई के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना। क्या होगा? इय्याका नअबुदु की रोशनी में ए हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। नअबुदु आ गया तो जाहिर है वो इबादत करना ऑटोमेटिकली वही। चलिए, वह इय्याका नस्ताईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। कायनात का मुताला करना, दूसरों के साथ नरमी बरतना, अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। व इय्याका नस्ताईन, और हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। नस्ताईन का मतलब है मदद। तो चलिए, सूरत फातिहा हर रकत में याद। हदीस की किताब सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। तो चलिए, इसके साथ ही पहला हिस्सा खत्म होता है। हम 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हिस्सा ग्रामर शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा 2 ग्रामर में खुशामदीद। आज हम ग्रामर में सीखेंगे उसका, उनका। पहले हमने पढ़ा था ना होवा, वो, हुम, वो सब, लेकिन आज जो है हम पढ़ेंगे उसका, उनका। क्या होगा? हु, हुम, का, यी, कुम और ना। लेकिन ग्रामर टीपीआई के साथ। आज ये कौन करवाएगा? आप लोगों में से कोई करवाए? ये कोशिश मैं कीजिए। करवाऊं। मैं करवा जी दूं। बिल्कुल, अच्छा, एक दोनों मिनट। करवा दें, बारी बारी दोनों करवाइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर, आप भी कर लीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। गुड। इस तरह क्या होता है कि इससे हमारा पूरा जिस्म जो है वो काम करता है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। चलिए, सूरत फातिहा में इसम की निशानी। इसम की निशानी में हमने क्या पढ़ा था? शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं और जो है आखिर में तनवीन आती है। 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर। जिनके साथ ये निशानी लगी होगी वो क्या होंगे? वो इसम होंगे। और इनकी जब हम जमा बनाएंगे, या तो उनके आगे वाव नून लगेगा या नून लगेगा। जमा बनाने के लिए वाव नून और या नून। चलिए, ये हमारा जो बेसिक टेबल। हुआ, हुआ, हुम, वो, अंता, ता, आना, अंतुम, नहनो। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। ये टेबल बहुत अहम है, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना ज़हन नशीन कर लेना है। तो चलिए, अभी आप में से कोई दोहराए इसे। जी, शमीम ख्वाजा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, दोहराइए होवा, प्लीज। होवा, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, आना, मैं, अंतुम, वो सब, नाहनु, हम सब। अंतुम सिस्टर, आप सब। आप सब, चलिए, सॉरी। नादिया अशरफ, आपने भी हैंड रेज किया हुआ, आप भी दोहरा दीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। गुड, नहनु हम सब। चलिए, अब हम अल्फाज या कलमे की 3 किस्में। कौन कौन सी? इसम, फेल, हर्फ।
इसम क्या है? किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिफ्त जैसे मुस्लिम और मोमिन। इसकी निशानी क्या है? शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, आखिर में तनवीन, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, और जमा बनाने के लिए वाव नून, या नून और अलिफ ता लगाते हैं। फेल क्या है? जिससे काम के होने या करने का पता चले और इसमें जमाना पाया जाए, जैसे फतहा या मलून। हरफ क्या है? जो इसमों और फेलों को मिलाए। कौन से हैं ये हरफ? बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह। तो इसम ये देखें, ये मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ये क्या है? ये सब इसम हैं। मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। ये देखें, अभी इसकी जमा बनाने का हम सीखते हैं। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। अगर इस पे कोई 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लिखा हुआ है, तो आप इसको दोनों तरह से इसकी जमा बना सकते हैं। मुस्लिम है ना, जैसे इसके हम अगर जमा बनाएंगे, इसके साथ वाव नून भी लगा सकते हैं, या नून भी लगा सकते हैं, जैसे ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आता है। साले, काफिरीन, मुशरिक। अगर इनके ऊपर तनवीन लगी होती तो फिर हमने फर्क करना था कि आया इसके साथ वाव नून लगाएंगे या नून लगाएंगे। अगर इसी तरह से दिया होगा तो हम दोनों तरह से इसकी जमा बना सकते हैं। तो इसको भी एक दफा दोहरा दीजिए। कौन दोहराएगा जी? हैंड रेज कीजिए। जी, कौन इसको दोहराना चाहेगा? जी मैं बिल्कुल दोहराइए। मुस्लिम, दोनों आप दोहराइए। मुस्लिम, बारी। मुस्लिमूना, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनूना, मोमिनीन, साले, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरूना, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीन। चलिए, दूसरी कौन सी सिस्टर ने कहा था, वो भी दोहरा दे। चलिए, मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनूना, मोमिनीन, साले, सालेहून, सालेहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीन। मुशरिकीन। ये देखिए, जमा बनाने का एक कायदा ये है। पीछे तो हमने वो सादगी के साथ बनाया था ना, कि अगर 2 पेश, 2 जेर या 2 जबर नहीं लगा हुआ, सादा है, मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक जो भी है, उसकी हम दोनों तरह से बना सकते हैं। वाव नून भी लगा सकते हैं और या नून भी लगा सकते हैं। यहाँ उन्होंने फर्क के साथ हमें बताया। देखें, मुस्लिमुन है ना, जिसके ऊपर 2 पेश आए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? उसकी जमा वाव नून लगा के, मुस्लिमून। ठीक है। और आगे मुस्लिमन, अगर 2 जबर के साथ हो, मुस्लिमन, तो इसके साथ क्या लगेगा? या नून, जमा बनाने के लिए। मुस्लिमन से मुस्लिमीन। और इसी तरह मुस्लिमिन 2 जेर के साथ जब आएगा तो तब भी या नून के साथ हम इसकी जमा बनाएंगे। मुस्लिमिन, मुस्लिमीन, मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीन, दोनों का एक ही। इसी तरह अगला इसमें मोमिनुन, तो इसकी क्या होगी? मोमिनून, वो नून लगा के, वही जैसे हमने मुस्लिम की बनाई है, मोमिनून, मोमिनुन, मोमिनून, वो नून। और अगर होगा मोमिनन, तो इसकी जमा होगी या नून लगा के, मोमिनीन। इसी तरह मोमिनिन होगा तो उसकी भी या नून लगाएंगे, मोमिनीन। आगे है सालेहुन, इसकी जमा होगी सालेहून, सालेहन, सालेहीन, सालेहिन, सालेहीन। तो आप एक दफा इसे भी दोहरा दीजिए ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें याद होगा। चलिए बनाइए। मुस्लिमुन से जी कौन बनाएगा? मुस्लिमूना,
मुस्लिमन मुस्लिमीना मुस्लिमिन मुस्लिमीना मोमिनुन मोमिनूना मोमिनन मोमिनीना मोमिनिन मोमिनीना सालिहुन सालिहूना सालिहन सालिहीना सालिहिन सालिहीना। जज़ाकल्लाह। और कौन बनाना चाहेगा? मैं कर लूं। हाँ जी बिल्कुल कीजिए, सब करें बल्कि बारी मुस्लिमुन बारी ताकि अच्छी तरह याद हो। मुस्लिमूना Good. मुस्लिमन मुस्लिमीना मुस्लिमिन मुस्लिमीना मोमिनुन मोमिनूना मोमिनन मोमिनीना मोमिनिन मोमिनीना सालिहुन सालिहूना सालिहन सालिहीना सालिहिन सालिहीना। गुड। ये तो सिर्फ 3 वो है ना, मुस्लिमुन मोमिनुन सालिहुन, इसकी जगह हम जो भी हम लगा, जो भी, ठीक है, तो उसके ऊपर निशानी यही हो तो इसी तरह से उसकी जमा बनेगी आगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, पिछले असबाक से चंद सवालात लेते हैं। अंता की जमा बताइए। आना, नहनो, अंतुम, हुम, ABCD। अंता की जमा। अंतुम अंतुम, अंतुम? अंता, अंता हम इस तरफ इशारा करते हैं, तू, अंतुम, अंतुम किस तरफ करते हैं? तू, तुम, चार उंगलियों से, अंतुम। अंता तुम। एक उंगली से, अंतुम चार उसकी से। जमा होगी आप 4 सब। उंगलियों से। आप सब, अंतुम। एक किताब की अरबी क्या होगी? किताबुन, अल किताबुन, किताबुन, अल किताबु। एक किताब। अल किताबु अल किताबु। डी मेरे ख्याल में ये किताब कल हुई। भी ये सवाल रिपीट हो रहा है, कल भी शायद था। इसकी है किताबुन, किताबुन किताबुन, एक किताब। हुआ की जमा हुम, नाहनु, हुआ, अंतुम। क्या होगी हुम हुआ की जमा? हुआ, हुम हुम, गुड। हुआ, हुम। तो चलिए आज का सबक, हमने इससे पहले के सबक में वो सब, आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे थे। वो यानी हुआ, अंता, आना, नहनु, ये सीखे थे ना। तो आज क्या है, अब हम इसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा के लिए अरबी अल्फाज सीखेंगे। कैसे, ये अभी हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल होता है। ये पहला देखें, इस लाइन में ये एक आया है ही, दूसरे में हु, फिर ये हु, फिर हुम। आप जब भी खोलेंगे तो हर कुरान पाक जब भी आप खोलेंगे हर लाइन में आपको ये मिलेंगे। तो ये पहले हमारा वो बेसिक टेबल जो पहले हमने सीखा था, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, आना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। तो अभी आज जो हमने सीखना है वो क्या है, वो अलग से थी, उनको कहते हैं ज़मीरे मुनफसिल। ये है मुतसिल यानी जुड़ी हुई। ये इसम के साथ या उसके साथ, हरफ के साथ इस तरह जुड़ के आएंगी। आगे आप जो प्रैक्टिस हम करेंगे ना तो उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हु होगा उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। हु, हुम, का, ये, कुम, ना, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो चलिए एक बार इसको भी दोहरा दीजिए। हु इसका, हुम इन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा, गुड। कोई और दोहराएगा ताकि ये पक्के हो जाएं शुरू में ही हमें। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका,
ना हमारा। गुड, ना हमारा। मैं भी एक दफा करा दूं। जी बिल्कुल करवाइए, हम तो चाहते यही हैं कि सब प्रैक्टिस करें। उसका, हम, उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। नियाज भाभी आप कराइए। जी चलिए आगे चलते हैं। जी करवाना चाह रहे हैं आप? चलिए हम अगले उसको देते हैं। देखिए ये दोनों का अभी आपके सामने दोनों टेबल है। हमने पहले जो पढ़ा था ज़मायर जो अलग से होके आती है, ये जुड़ के आने वाली। ये देखिए हुआ वो था ना, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हु। हुम का वही रहेगा हुम। अंता, अंता का क्या होगा, का। आना का क्या होगा, यी। अंतुम का कुम। नहनु का ना। हुआ, हु। हुम का हुम। अंता का, आना का यी। अंतुम कुम। नहनु ना। ना। हाँ, इसके उसमें थोड़ा सा फर्क क्या आएगा, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु सब। हम सब। तो इसका क्या, इसका क्या हो जाएगा माना, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, मेरा। कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है, तो चलिए अभी नए अल्फाज में था रब, का मतलब है रब पालने वाला। चलिए अभी जो हमने हु, हुम, का, यी, कुम, ना पढ़ा है ना, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, रब्बू। रब्बू को लगाएंगे तो कुछ इस तरह से टेबल बन जाएगा। रब्बोहु, रब्बोहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब रब्बुका का आपका रब, का रब, रब्बी बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। चलिए जी ऐसे ब्रदर आप दोहराइए, न्याज ब्रदर। रब्बुहु रब्बु का, रब्बुहुम रब्बु का, रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। रब्बुना। चलिए उसका और कौन रब, दोहराना चाहेगा? रब्बहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी कोई और दोहराएगा? रब्बुहु उसका उसका रब, रब्बहुम इन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा रब। रब्बुना हमारा रब। मैं दोहराऊं मैम? जी आप भी करवा दीजिए, बिल्कुल करवाइए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुकुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। सिस्टर एक दफा आप मेरे साथ कीजिए, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम रब्बुहु उन उसका सबका रब, रब, रब्बुहुम उन रब्बुका सब का रब, आपका रब, रब्बी रब्बुका आपका रब, मेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप रब्बुकुम सबका आप रब, सब का रब, रब्बुना रब्बुना हमारा। हमारा रब। चलिए रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय रब्बे ही का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इससे तर्जुमे में कोई फर्क नहीं पड़ता। रब्बुहुम की बजाय हम रब्बे हिम भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं। चाहे हम रब्बुहुम कह लें चाहे रब्बे हिम कह लें, दोनों का एक ही मतलब होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए। चलिए ये अभी हमने बनाया है रब्बू का, तो
इसके बाद हम अरबी बोलचाल को लेते हैं। हमने नया लफ्ज पढ़ा था मन, जिसका मतलब था कौन। तो रब का तो आपको पता है। आगे हमने ज़मायर लगाई थी हु की, जो अभी हमने हु, हुम, का, कुम जो अभी हमने पढ़ी है। तो देखिए अभी इस मुकालमे को, मन रब्बुहु, क्या जवाब होगा इसका? रब्बुल्लाह। अल्लाह, मन रब्बुहुम, क्या होगा इसको? रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। देखें, आपने नोट किया, हु का हु से ही आया, कोई चेंज नहीं आई। हुम ही आया जवाब में, कोई चेंज नहीं। कहाँ पे है? का जो है वो का। ही की तरफ लड़ता है। मन रब्बो का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब्बी अल्लाह। मन रब्बो कुम, मन रब्बो कुम, कुम, रब्बुल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह, रब्बो नल्लाहो, रब्बो नल्लाहो। ठीक है, मन रब्बोहु रब्बुल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बु नल्लाह। चलिए, पहले हमने रब के साथ रब्बुन लफ्ज लगाया, वो इसम लगाया था। अभी हमने क्या है? दीन। तो इससे देखिए ये कैसे टेबल बनता है। दीनुहु, दीनुहुम, दीनों का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा मेरा दीन, दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, सबका दीन, दीनोना दीनुना हमारा दीन, हमारा दीन। दीनुहु दीनुहुम, दीनों का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। चलिए अब आप लोग दोहराइए इसे। जी हैंड रेज दीनुहु, कीजिए। दीनुहु इसका दीन, दीनुहुम इन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी, कोई और ब्रदर एंड सिस्टर? दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। हमारा दीन। जी, कोई और दोहराएगा या फिर आगे दीनुहु चलें? उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनिनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। हमारा दीन। गुड। चलिए, हु, हुम, का, यी, कुम, ना की लफ्ज से कुरान में कितनी बार आया है? तकरीबन हर सफ़े में, तकरीबन हर सतर में, तकरीबन हर सूरत में, तकरीबन हर लफ्ज में। ABCD तकरीबन हर सतर में। तकरीबन हर सतर में आया है ये। अस्माइहिम हमारे नाम, उन सबके नाम, आप सबके नाम, उसका नाम। ABCD अस्माइहिम। पहले आप इशारा बी, करें फिर देखें आपको। अस्माइहिम बी क्या उन होगा? सब के। उन सबके नाम। गुड। रसूलुकुम, कुम हमारे रसूल, तुम्हारे बहुत से रसूल, हमारे बहुत से रसूल, तुम्हारा रसूल। ABCD रसूलुकुम। हमारे बहुत से रसूल, हमारे बहुत तुम्हारा रसूल। बी, बी, जिसने बी कहा है उसका जवाब दुरुस्त। हाँ हाँ, मतलब तुम्हारा रसूल, कुम आया है ना, तुम्हारे रसूल, तो ये मेरे ख्याल में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। का होता तो फिर होता तुम्हारा। चले, हमारा रब की अरबी बनाइए। रब्बुना, रब्बुका, रब्बुहुम, रब्बुकुम हमारा रब। रब्बुना, ABCD रब रब्बुना, रब्बुना, ना रब्बुना जो है वो हमारा। गुड। हमारा। रब्बुना। तर्जमा कीजिए। दीनुहुम, दीनुहुम हमारा हमारा दीन, दीन, उन सबका बी, दीन, उन उसका सब दीन, का हमारा दीन। दीन, उन बी इन उन सब का दीन। उन सबका दीन। गुड। चलिए, नया लफ्ज है माँ। इसका मतलब है क्या। क्या? माँ क्या। क्या?
تو اب ہم اس کو اس میں استعمال کریں گے تو کیسے گا؟ ماں دینوں کا ہوگا نا، ماں دینوں کا، تو یہ کس طرف پلٹے گا؟ اپنی طرف، تو اس کا جواب ہوگا دینی الاسلام، یعنی ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، ہم کہیں گے میرا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماں دینوں کا دینی الاسلام. یہ دیکھیں یہ پورا بھی آپ کے سامنے مکالمہ. تو ابھی آپ لوگ کروائیں، ایک جو ہے یہ سوال کرے، دوسرا جواب دے. دو سسٹر آ جائیں، کون میں کروائیں گے؟ کروا دوں. ہاں جی آپ دو کرتے ہیں، ایک سوال کرے ایک آگے جواب دے. چلیے ما دینہ دینہ اسلام، ما دینہم دینہم الاسلام، ما دینکا دینی الاسلام، ما دینکم الاسلام. جزاک اللہ. ما دینہ دینہ الاسلام، ما دینہم دینہم الاسلام، ما دینوں کا دینی الاسلام، ما دینکم دینو نل اسلام. چلیے اب آگے چلتے ہیں. ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا، یہ ابھی آپ لوگوں نے کروانا ہے. علمو اکتبو، علمو ہوتا ہے ایک دوسرے کو سکھائیے، اکتبو لکھیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جلد یاد ہوتا ہے. ایک دوسرے کو سنانے سے، سکھانے سے تب بھی ہمارے دماغ میں جلد بیٹھتا ہے، اور لکھنے سے بھی. اکتبو یعنی لکھو. تو اس ٹیبل کو ہم نے آج پکا کر لینا ہے. ہو اس کا، ہم سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ. چلیے ایک بار آپ لوگ اس کو پھر دوبارہ دہرا دیجئے. ہو اس کا، یاد ہو جائے. ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ایک دفعہ سب لوگ دہرائیں اس کو، سب لوگ. ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ہمارا، کیونکہ اس نے آگے بار بار آنا ہے. اس کے ساتھ ہم جو بھی اسما لگائیں گے یا جو لگائیں گے تو یہ جڑ کے آئیں گے، تو بار بار آئیں گے. آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ترجمہ ہے. چلیے وہاں تو ہم نے صرف ربو اور دین لگایا تھا نا. تو اب یہ دیکھیں ہم کوئی بھی لفظ اس کے ساتھ لگا لیں. یہ جو پچھلا ٹیبل ہے یہ، اس کے ساتھ ہم کوئی بھی لفظ لگائیں. جیسے ایک مثال میں کہتی ہوں رسول، تو کیسے ٹیبل بنے گا؟ چلیے آپ کے اس کے لیے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. تو رسول کو اس کے ساتھ جوڑ کے آپ بنائیے. کون بنا کرے گا کوشش؟ رسولہ، رسولہ، رسولہم، رسولکا، رسولکی، رسولکم، رسولنا. گڈ، ویری گڈ. اور اگر ہم اس کے بعد کتاب اگر ہم لگائیں اس کے ساتھ، کوئی اور سسٹر یا بردر بنائے. جی کتابہم، کتابوں، کتابہم، کتابکا، کتابی، کتابکم، کتابنا. باری باری بنائیے سسٹر، باری باری بنائے، سب بنائیں. میں سب کو ایک ایک لفظ دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو باری باری آپ سب لوگ بنائیں. تو اگلا ہم باب کا بناتے ہیں. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. اگر ہم اس کے ساتھ باب لگائیں گے. جی بردر آپ بنائیے باب کے ساتھ. بابہ، بابہم، باب کا، بابی، بابکم، بابنا. جزاک اللہ بردر. چلیے اب اگر ہم اس کے ساتھ قولن لگائیں، قول. قولہ، قولہم، قولکا، قولی، قولکم، قولنا. اور امن لگائیں، امن یعنی ماں، امن. امہ، امہو، امہم، امہم، امکا، امکا، امکی، امی، امنا. امکم، امنا، امنا. امونا. اچھا ابھی ہم اس کے سلات لگاتے ہیں. چلے
सलात नमाज जिसको सलातुहु स्वलातुहुम स्वलातुका स्वलातुकी स्वलातुकुम सलाती यानी मेरी नमाज सलातुकुम सलातुना सलातुना। अच्छा, अब एक और लफ्ज हम इधर से देते हैं, इसम चलें, जिसका नाम मतलब है नाम, इस्मुन। इसम इसके साथ लगाएंगे तो कैसे बनेगा? जी मैं बनाऊं? जी बिल्कुल बनेगा। इस्मुहुम, इस्मुका, इस्मुयी, इस्मुकुम, इस्मुना। इसमी, ठीक है, इस्मी, इस्मुकुम, इस्मुना। हाँ। चलिए अब हम आगे हम बनाते हैं अमलुन से। अमलुन, चलिए ये इसके साथ जोड़े। अमलुहुम अमलुहु, अमलुका अमलहुम, अमलुकी अमलुका, अमलुयी, अमलुकुम, अमलुकुम अमलुना। अमलुना। चलिए अब तो ये पक्के हो गए ना, कोई भी आपको दे दिया जाए आप इसके साथ जोड़ के पूरा टेबल बना लेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये देखें डॉक्टर फरूक का दिलचस्प टिप, 4 मिनट में 8 अल्फाज। ये देखें आगे, किताब, ये इसमें किताब, कलम, सा, जवाल। सा घड़ी को कहते हैं, जवाल मोबाइल को, किताब कलम वो आपको पता है। मैम ये चारों हिस्सा में ये सातुन अगर आ जाएगा, जवालुन आ जाएगा तो फिर ये इसम बन जाएंगे। यहाँ तो सादगी से उन्होंने लिखे हुए ना, ये नाम है सातुन जवाल, ये आगे आ रहा है, ये देखिए, ये देखें किताबों का, तेरी किताब, किताबी मेरी किताब, मेरी किताब कलमों का आपका आपका कलम, कलम, कलमी मेरी मेरा कलम, कलम, मेरा कलम या मेरा कलम, ठीक। सातों का आपकी तेरी घड़ी, घड़ी, साती मेरी घड़ी, जवालों का आपका मोबाइल, आपका मोबाइल, जवाली मेरा मेरा मोबाइल। मोबाइल, मेरा मोबाइल, ठीक है। चलिए माँ किताबों का क्या जवाब होगा? किताबुल कुरान, किताबुहुमुल कुरान, किताबियल कुरान, किताबुकल कुरान। माँ किताबों का, किताबियल कुरान। किताबियल कुरान, गुड। का अपनी तरफ ही, किताबियल कुरान। मन रसूलुकुम, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुकुम रसूलुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुना मोहम्मद, ये रसूलुना मोहम्मद। मा दीनुहुम, दीनुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, दीनुहल इस्लाम। दीनुहुमुल इस्लाम। इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, इसमें कोई चेंज नहीं आती, हु और हुम में कोई चेंज नहीं आती है, उसका जवाब उसी तरह ही होता है। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, रब्बुकुमुल्लाह, रब्बुनल्लाह, रब्बुकुमुल्लाह, ऑप्शन है रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, गुड। माँ दीनों का, दीनुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, दीनुहल इस्लाम। जी इस्लाम, दीनियल इस्लाम। इससे वैसे हमारी प्रैक्टिस हो गई है, वो जो कब्र में सवाल होंगे ना, इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको उसके सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाह में सबको अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से बचाए। आमीन। आमीन। ये देखिए, ये हम आपको जो दिखाते होते हैं, ये छोटा सा मुख्तसर सा कार्ड, ये आपने इसको रोजाना के 2-4 मिनट देने हैं। इसमें तमाम असबा के मुश्किल अल्फाज होते हैं, ठीक है। और नुक्ता तालीम, हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए हैं। दिमाग कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए हैं। तो हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि हर खलिए में एक बात महफूज होती हो। तो इसकी हम अभी चलिए मिसाल समझते हैं। एक देखिए, एक लफ्ज है फील, ठीक है ना, एक लफ्ज आपको दे दिया फील, तो जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे इतना ही फायदा होगा। तो एक लफ्ज आपको दे दिया जाता है कॉन्टेक्ट,
दूसरा साउंड, तीसरा प्रोनाउन, चौथा स्पेलिंग, उसके बाद ये है शेप, स्टोरी सुना दी जाती है आपको, इस थोड़ी स्मेल उसकी, और उसके बाद आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी। ये जब सारी चीजें आपके दिमाग में महफूज होती जाएंगी उसके बाद ये देखें दिमाग कैसे काम करता है। आपके सामने ये एक फील क्या था, फील कहते हैं अरबी में हाथी को। तो ये आपके ये एक तस्वीर बनेगी, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका था। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 3 के खत्म पर आपने 33 अल्फाज सीखे, जो 33 नहीं बल्कि हमने 12,000 से ज्यादा अल्फाज सीखे। तो इसलिए सब मिलकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने कुरान मजीद के आज इतने अल्फाज सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आपने करने हैं, 2 तिलावत के, यानी जो हमने आपको पहले भी बताया था मसहफ से, और 5 मिनट हाफसे से, यानी ज़बानी आपने इसको पढ़ना है। 2 पढ़ने के, किताब से आपने पढ़ना है, इस बुक से, और जो है जो ये हमने पॉकेट बुक या शीट आपको जो है बताई थी इससे आपने, ठीक है। और अल्फाज, इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए और रब्बे ज़िदनी इल्मा का वर्द करते रहा कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। और सबके लिए दुआ करनी है, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, टीचर बनना है। इसको सीखने के बाद आपने सिखाना है, ठीक है। आपने सब में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम खत्म होता है। तो हम मिलके अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। इस दुआ को आपने मेरे साथ जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये दुआ जो है मजलिस के कफारे की दुआ है। हमें नहीं पता कि क्लास के दौरान हमसे कितनी गलतियां होंगी, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है, तो उसने हमें तरीके भी बता दिए, ठीक है। तो ये दुआ जब मैं पढ़ती हूँ तो आप सब लोगों ने भी अपनी अपनी जगह इसको पढ़ना है। सुभान अल्लाह व सुभान बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व नशहदु बिहम्दिका, अन ला नस्तगफिरुका इलाहा व इल्ला अंता नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।